السلام علیکم، بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جی زنجیر نظر کنزا خان اس کی آخری قسط کے ساتھ۔ یوسف ان دونوں کو چھوڑ کر نیچے آئے تو ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ابراہیم انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوسف تیزی سے ابراہیم کے قریب آئے اور انہیں کے سینے سے لگ گئے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو مسلسل تکلیف میں دیکھ کر ان کے لیے صبر کا دامن تھامنا مشکل ہو چکا تھا۔ حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ابراہیم نے شفقت سے ان کی پشت تھپ تھپائی اور آہستہ سے کہا، پھر ان کا ہاتھ تھام اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ یوسف حیران نظروں سے انہیں دیکھتے خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں قریبی پارک میں پہنچے۔ ٹھنڈی ہوا اور سنسان ماحول کی وجہ سے اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ ابراہیم ایک سنجیدہ خاموشی کے ساتھ یوسف کو لے کر علیحدہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے گزرے پھر ابراہیم نے بولنا شروع کیا، میں تمہیں گھر سے دور اس لیے لایا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ جن ہماری باتیں سنیں۔ وہ جن اس گھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ ابراہیم نے آہستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو یوسف، عورت کا مزاج نرمی، حساسیت، جذباتیت کے قریب ہوتا ہے۔ جنات خاص طور پر وہ فاسق اور شہوت پرست ہوتے ہیں۔ عورت کی اس فطری نرمی کو کمزوری بنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب عورت تنہا ہوتی ہے تو یہ مخلوق ان کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابراہیم نے رک کر سانس لی، پھر بولے، یوسف، تمہاری بیٹی پر ایک جن ناشک ہے۔ جنات کا انسان سے لگاؤ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے کیونکہ نہ تو یہ تعلق اختیاری ہوتا ہے اور نہ ہی شریعت اسے جائز کہتی ہے۔ اس جن نے خود کو شوہر کہہ کر تمہاری بیٹی پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ابراہیم کی آواز میں اس معصوم بچے کے لیے دکھ واضح تھا۔ یوسف پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یوسف، اگلے 41 دنوں تک تم دونوں نے بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ ابراہیم نے اپنی بات کو زور دے کر کہا، وہ جن کسی نے جادو کے ذریعے پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں قید کر رکھا ہے۔ کالے جادو کا توڑ بھی کالا جادو کر کے ہی کیا جا سکتا ہے اور میں یہ حرام عمل نہیں کرتا، اس لیے میں چاہ کر بھی اس جن کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن ان کے لفظوں پر یوسف مزید پریشان ہو گئے تھے، مگر اس کے آخری لفظ پر ان میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی۔ لیکن میں تمہاری بیٹی کو اس جن سے آزاد کروا سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تمہیں یہ عمل پورے 41 دن تک کرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ عمل مکمل کر لیا تو 41ویں دن تمہاری بیٹی اس جن سے آزاد ہو جائے گی اور اسی لمحے تمہیں وہ گھر فوراً چھوڑنا ہوگا۔ ابراہیم کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اگر تم نے ان 41 دنوں میں بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا چھوڑا تو سب برباد ہو جائے گا اور پھر اس جن کو روکنا میرے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم کی بات پر یوسف نے پریشانی کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا۔ آپ عمل بتائیں، میں اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگلے 41 دنوں میں تمہیں گھر میں مکمل سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ عریج اس عمل پر غصہ ہوگی، تڑپے گی، روئے گی، پر یہ سب اس جن کے تمہاری بیٹی کے وجود پہ چھوڑے گہرے اثرات کی بدولت ہوگا۔ عریج کچھ بھی کرے، پر تم نے تلاوت مکمل ہونے تک اسے بند نہیں ہونے دینا۔ ابراہیم نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بتایا، پھر ان کی جانب 2 تعویذ بڑھائے۔ یہ تمہارے اور آسوا کے لیے، انہیں خود سے جدا نہ کرنا۔ ان کی وجہ سے وہ جن تم دونوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم نے 41 دنوں تک روز یا تو پانی یا زیتون کا تیل لینا اور اس پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر پانی پر پڑھو تو عریج کو پلانا اور اگر زیتون کے تیل پر پڑھو تو آسوا سے کہنا کہ عریج کے جسم پر اس تیل سے مالش کر دے۔ اس عمل سے پہلے تلاوت لگانا، یوں اس جن کی طاقت کمزور پڑ جائے گی اور پھر وہ تمہیں اس عمل کو کرنے سے روک نہیں پائے گا۔ ابراہیم کی آواز میں علم اور فہم کی گہرائی تھی۔ یہ عمل بغیر کسی ناکے کے کرنا ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم نے انہیں تفصیل سے سب بیان کیا تو خاموشی سے سنتے یوسف نے سر اس بات میں ہلایا۔ ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے کی اجازت چاہی۔ یوسف نے کھانے پر رکنے کا اصرار کیا مگر انہوں نے نرمی سے انکار کر دیا اور چلے گئے۔ عریج سو رہی تھی اور آسوا روتی ہوئی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ اس کے وجود سے نکلتا تھا اس کا جسم درد سے بھر جاتا تھا۔ یوسف اوپر آیا اور اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھی اپنی روتی ہوئی بیوی کو دیکھ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، پھر گہرا سانس لیا اور آسوا کے قریب آ گئے۔ یوسف نے انہیں وہ تعویذ پہنایا۔ آسوا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ ضروری ہے، انہوں نے ان کے سوالیہ نظروں کے پیش نظر جواب دیا تو وہ خاموش ہی رہیں۔ یوسف نے آسوا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ اگر وہ کچھ بتاتے تو وہ جن سن لیتا۔ وہ کہیں آس پاس ہی موجود تھا، اس لیے انہوں نے آسوا کو نا علم رکھنے کا فیصلہ کیا۔
अरीज कल से बस सो ही रही थी। आसफा और यूसुफ इसी के कमरे में मौजूद थे। उन्होंने कल से एक लम्हे के लिए भी अरीज को अकेला नहीं छोड़ा था। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। सुबह होते ही यूसुफ लाउंज की जाने बड़े बुलंद आवाज़ में सूरतुल बकरा की तलावत लगा दी। कल से बेसुध पड़ी अरीज के वजूद में हरकत होने लगी। उसका जिस्म लरसने लगा। फिर एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठी। आसफा इसकी हालत पर घबराकर बिस्तर से उठ गई। बंद करो इसे, उसकी चीख से पूरा घर गूंजा। वो अपने कानों पर हाथ रखे तलावत की आवाज़ अपने कानों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। आसपास से इसकी चीखें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। यूसुफ तलावत लगाकर वापस कमरे में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर आसफा को पकड़ा और पीछे किया। यूसुफ और आसफा की हालत उसे देखकर बिगड़ने लगी। वो दोनों नम आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे जिसकी बेचैनी उसकी जान लेने के करीब थी। अरीज ज़ोर ज़ोर से अपने दिल के मकाम पर हाथ मारने लगी। एक हाथ कानों पर था और दूसरा दिल से वो अपने सीने को पीट रही थी। वह शदीद तकलीफ में नजर आ रही थी। सुफैन उसके जिस्म पर छोड़े गहरे असरात उसे बेचैन कर रहे थे। इब्राहिम की पढ़ाई की बदौलत वह अरीज के वजूद में फ़िलहाल दाखिल नहीं हो सकता था। आसफा अपनी बेटी की हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। अरीज एकदम बिस्तर पर पीछे को गिरी। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसे तड़पते हुए अपने माँ बाप की जानिब देखा। वो दोनों भी रो रहे थे। वो निढाल हो रही थी। उसने अपने वालिदैन को देखते हुए अपने लरसते हाथ जोड़े। इसे बंद कर दो। वो इस कदर तकलीफ में बोली कि यूसुफ और आसफा का खुद पर से काबू ख़त्म होने लगा। आसफा ने बेबसी से यूसुफ को देखा जो अपनी बेटी के अजियत में देखकर तड़प रहे थे मगर अपनी जगह से नहीं हिले थे। बाबा प्लीज़, अरीज की आवाज़ में फरियाद थी। यूसुफ आप सुन क्यों नहीं रहे? बंद करें उसे। आसफा मजीद अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी तो चीख पड़ी मगर यूसुफ ना हिले। इन्हें ना हिलता देख आसफा ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ताकि खुद जाकर तलावत बंद कर सके, लेकिन यूसुफ ने इनका हाथ थाम दिया। तो तलावत मुकम्मल होने तक अरीज और आसफा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो आवाज़ बंद हो जाए मगर यूसुफ ने दोनों की एक न सुनी। ये 2 घंटे उनके लिए बेहद अजियतनाक थे। वो अपनी बेटी की इस वक्ती अजियत को बर्दाश्त कर रहे थे ताकि हमेशा के लिए इस जिन से इनकी बेटी को आज़ाद करा सके। जब तलावत मुकम्मल हुई तो यूसुफ ने आसफा को ताकीद की कि एक लम्हे के लिए भी अरीज को अकेला न छोड़ा जाए और ख़ुद नीचे चले गए। कुछ देर बाद वापस आए और जैतून का तेल आसफा की तरफ बढ़ाया। इससे अरीज के जिस्म पर मालिश करो, यूसुफ ने कहा और आसफा के सुने बगैर ही कमरे से बाहर चले गए। अंदर आसफा अलीज की मालिश करने लगी। वो निढाल सी पड़ी थी। सुफैन इस वक्त टेरेस के दरवाजे के पास बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसमें इस लम्हे हिम्मत इतनी ही नहीं थी। आसफा सुफैन को नहीं देख सकती थी। उन्होंने अरीज की बेजान से वजूद की मालिश की। जब वो फारूक हुई तो कुछ देर बाद यूसुफ वापस आ गए। आसफा ने इन्हें आगाह कर दिया कि वो मालिश मुकम्मल कर चुकी हैं। अरीज के जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए दोबारा सो गई। सुफैन ने उसके ख्वाब तक रसाई हासिल करने की कोशिश की मगर वो आज नाकाम रहा। मैं यहाँ हूँ, तुम नाश्ता ले आओ। हम अरीज को कुछ दिन अकेला नहीं छोड़ सकते। यूसुफ ने कहा तो आसमा सरस्मात में हिलाती नीचे चली गई। कुछ देर बाद वो खाना ले आई। दोनों ने ऊपर ही खाना खाया और एक बार फिर अरीज के करीब जगह संभाल गए। 35 दिन हो चुके थे इस अमल को चलते। यूसुफ का रोज़ाना इब्राहिम से रब्ता होता था। घर में यूसुफ पढ़ाई करते और अपने हुजरे में इब्राहिम। अब सिर्फ 6 दिन और बाकी थे, फिर अरीज सुफैन से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाती। अरीज के रवैये में अब वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। सुफैन अब ना ख्वाबों में आता और ना ही नज़र आता। इन 35 दिनों में अरीज ने सुफैन का लम्स, सांसें कुछ भी महसूस नहीं किया और ये सब इस पर बहुत मुस्बत असर हो रहा था। अब वो बातें करती थी, मुस्कुराती थी। जब तलावत होती तो कुछ बेचैन हो जाती मगर पहले जैसी शिद्दत अब बाकी नहीं रही थी। पहले 15 दिन इन तीनों के लिए बेहद तकलीफ दे थे। फिर उसके बाद अरीज की हालत में बेहतरी आने लगी। माजिद और सकीना फरसाम के साथ आते तब भी वो खौफज़दा नहीं होती थी क्योंकि अब तकलीफ देने वाला नहीं आता था। यूसुफ और आसफा ने अरीज को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। आसफा तो उसे वॉशरूम तक अकेला नहीं जाने देती थी। अरीज अक्सर पूछती कि उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता मगर यूसुफ और आसफा उसे कुछ बताते नहीं थे। वो काफ़ी अरसे से कॉलेज नहीं जा रही थी। पढ़ाई का हर्ज ज़रूर हो रहा था लेकिन पढ़ाई अरीज की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, इसलिए उसे इलाज मुकम्मल होने के बाद कॉलेज भेजने का फ़ैसला किया गया। आज माजिद और सकीना आए हुए थे। फरजाम साथ नहीं था। आज काफ़ी अरसे बाद सबने खुशगवार माहौल में एक साथ खाना खाया। अब सब लाउंज में बैठे चाय पीने में मसरूफ़ थे। हम आप लोगों से एक साथ आज ज़रूरी बात करना चाहते हैं। चाय का घूंट भरकर माजिद ने अपनी बात का आगाज़ किया तो सब मतवज्जो हुए।
दरअसल बात यह है कि हम आज आपको एक अहम हकीकत से आगाह करना चाहते हैं। माजिद ने संजीदा लहजे में कहा तो यूसुफ के चेहरे पर नासमझी के तासुरात उभरे। कैसी हकीकत? यूसुफ ने सवाल किया। आसफा और अरीज भी मतवज्जो थे। हकीकत यह है कि फरजाम हमारा सगा बेटा नहीं है, सकीना ने कहा। यूसुफ, आसफा और अरीज की आंखें हैरत से फैल गई। क्या मतलब सगा बेटा नहीं है? आसफा ने धीरे से लेकिन चौंक कर पूछा। वो मेरे बड़े भाई साजिद का बेटा है, हमने उसे गोद लिया था, माजिद ने फिर कहा और इन्हें सारी हकीकत से आगाह करने लगे। शादी के बाद सकीना उम्मीद से हुई थी मगर किसी वजह से वो पूरा नहीं हुआ। इसके बाद अल्लाह की तरफ से ही हमारी कोई औलाद नहीं हुई। शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। हम दोनों औलाद की चाह में बहुत रोते थे। फिर एक दिन मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ, फरसाम। मेरे भाई ने हमारी तन्हाई के पेश नज़र फरसाम हमारी झोली में डाल दिया। उन्होंने रुककर गहरा सांस भरा। यूसुफ, आसफा और अरीज हैरत से उन्हें देख रहे थे। हम दोनों ने सोचा था कि आप लोगों को इस हकीकत के मुतालिक नहीं बताएंगे क्योंकि हमें डर था कि आप इस शादी से इनकार ना कर दें। हम यह हकीकत छुपाकर मुतमईन थे मगर फरजाम मुतमईन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ या किसी भी किस्म के धोखे से हो। उसने हमें समझाया कि निकाह के वक्त वल्दियत में इसके नाम के साथ साजिद सुनकर आप लोगों को इल्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग इस वक्त शादी तोड़ देते। और फरजाम की बात दुरुस्त थी। हम इसी के समझाने पर आज आप लोगों को हकीकत बताने आए हैं। माजिद ने झुके सर के साथ इन्हें सारी हकीकत से आगाह किया, फिर चेहरा उठाकर इन्हें देखा। यूसुफ, हमने ये सब छुपाना चाहा क्योंकि हम चाहते थे कि ये रिश्ता ना टूटे, उन्होंने शर्मिंदगी से कहा। यूसुफ ने तसल्ली से इनकी बात सुनी। सकीना चेहरा झुकाए आंसू पोंछ रही थी। मेरी बेटी शदीद बीमार थी। हम दोनों मियाँ बीवी सख्त खौफजदा थे कि हमारी बच्चा जिंदा बचेगी भी या नहीं। हम टूट चुके थे, बिखर चुके थे। इस वक्त में माजिद बाप हमारे साथ खड़े थे। ऐसे नाजुक मौक़ों पर तो करीबी रिश्तेदार भी जान छोड़ देते हैं, लेकिन आपने हमारा पूरा साथ दिया। आप हमारी बेटी की हर हालत, हर लम्हा, हर तकलीफ से वाकिफ़ हैं और इस सब के बावजूद आप शादी के लिए तैयार हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सिर्फ इस बात की बुनियाद पर रिश्ता तोड़ दूंगा? यूसुफ ने कहा तो सकीना और माजिद ने हैरत से इन्हें देखा। यूसुफ मुस्कुरा रहे थे। आसफा और अरीज के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी। आप बेफिक्र रहें, अरीज ठीक हो जाए तो आप जब चाहें सफ़र साम के नाम कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यूसुफ की बात पर अरीज के गालों पर हया की सुर्खी छा गई। उसने फ़ौरन नजरें झुका ली। सकीना ने मुस्कुराकर आंसू पोंछे। माजिद खड़े हुए और यूसुफ के गले लग गए। जज्बात का एक खामोश मगर गहरा लम्हा था। आसफा सकीना के करीब बैठकर नरमी से इनका हाथ थाम गई। अरीज अभी सर झुकाए बैठी थी जब फरसाम सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। सबकी नजरें एक साथ उसकी जानिब उठी। अरीज ने नजरें उठाकर उसे देखा तो वह मोहब्बत भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे ही देख रहा था। अरीज की पलकें नजरें और हया से दोबारा नजरें झुका गई। हर जानिब खुशी का रंग बिखर गया। माहौल जैसे सुकून, मोहब्बत और शुक्र से महक रहा था। खुशियाँ जैसे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अरीज की आंख खुली तो उसने अपने माँ बाप को अपने करीब सोते पाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों में से कोई एक और ज़रूर जागता रहता, ज़्यादातर आसफा, क्योंकि वो अरीज को वॉशरूम के लिए अकेले नहीं जाने देती थी। मगर आज दोनों की नींद में गहरी थी। अरीज ने मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा जो पुरसकून सो रही थी। उसे वॉशरूम जाना था। उसने आसफा को जगाना चाहा क्योंकि आसफा ने इस मामले में उसे सख्ती से ताकीद की थी। मामा, उसने आहिस्ता से आवाज़ दी मगर शायद आसफा कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद सो रही थी। अरीज ने नरमी से हिलाया मगर वो टस से मस ना हुई। वॉशरूम ही तो जाना है, मैं भी वापस आ जाऊंगी। मम्मा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बगैर बताई गई थी। अरीज बड़बड़ाते उठी, बालों का जूड़ा बनाया वॉशरूम में दाखिल हो गई। यूसुफ की आंख खुली। उन्होंने सुकून भरा गहरा सांस लिया। दिल मुतमईन था। आज तलावत का आखिरी दिन था। आज इनकी बेटी ने इस जिन से आज़ाद हो जाना था और फिर इन्हें आज का अमल मुकम्मल करके इस घर को छोड़ना था। वो एक नया घर खरीद कर उसे रहने के लिए तैयार भी कर चुके थे। उन्होंने सुल्तान से बहुत झगड़ा भी किया था। सुल्तान ने ये घर बेच कर उन्हें मुसीबत में डाल दिया था। वो पुलिस के पास जाना चाहते थे मगर सुल्तान ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके सारे पैसे वापस कर देगा और आइंदा ये घर किसी को फ़रोख्त भी नहीं करके। बस शर्त यह है कि बात पुलिस तक ना पहुंचे। काफ़ी झगड़े के बाद यूसुफ राज़ी हो गए। उसके पैसे वापस करने पर ही यूसुफ ने नया घर ख़रीदा था और इब्राहिम को वो घर दिखा चुके थे। इन्हें डर था कि कहीं इस घर में भी कोई मसला ना हो, पर वो घर बिल्कुल ठीक था। अब बस आज का दिन था इनका इस घर में। ये सोचते हुए उठे और लाउंज की जानिब बढ़ना चाहा जब अचानक इनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। वहाँ पर सिर्फ आसपास सोच रही थी, अरीज वहाँ नहीं थी। यूसुफ का दिल पूरी रफ्तार से धड़का। वो कहाँ गई थी? उन्होंने कमरा, टेरेस, सब जगह देखी मगर वो कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। कमरे में होने वाले शोर की वजह से आसफा की आंख खुल गई। उन्होंने यूसुफ को परेशानी के आलम में वॉशरूम का दरवाजे बजाते देखा, फिर बिस्तर पर देखा।
फिर अरीज को वहाँ न पाकर दहल कर उठ बैठी। अरीज, उन्होंने तड़प कर पुकारा तो यूसुफ ने गर्दन मोड़कर इन्हें देखा। फिर दोबारा दरवाज़ा बजाने लगे जो अंदर से बंद था। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की मगर ये इनके लिए अकेले मुमकिन न था। आसफा को फ़ौरन घर से बाहर गई और माजिद का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। माजिद और फरजाम बाहर आए, बौखलाई हुई थी। हाँफती काँपती सांसों के साथ आसफा ने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो वो दोनों फ़ौरन ऊपर अरीज के कमरे की तरफ भागे। सकीना ने इन्हें सहारा दिया और ऊपर लेकर आई। वो तीनों मुसलसल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आसफा खौफ से रो रही थी। फरजाम ने ज़ोर से अपना कंधा दरवाजे पर मारा और दरवाज़ा पूरी कुव्वत से वाशरूम की दीवार से जा लगा। अंदर का मंजर देखकर आसफा की एक ज़ोरदार चीख गूंजी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर साकत हो गए। शक दुरुस्त था। अंदर अरीज थी मगर खौफनाक हालत में। अरीज घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसकी गर्दन मुकम्मल तौर पर पीछे को मुड़ी हुई थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी पुष्ट पर इसके दोनों कंधों के दरमियान इसका चेहरा रख दिया गया हो। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र चेहरे पर पड़ती थी। उसकी खुली आंखों में खौफ व हरास के तासुरात और उनमें से खून बहा था। दोनों बाजू पीछे को मोड़कर तोड़े गए थे और हाथों की पुष्ट ज़मीन पर थी। आंखों से बहा खून थोड़ी से टपक कर ज़मीन पर पड़ी हाथों की हथेलियों पर गिरा जम चुका था। इसकी मौत को काफ़ी वक्त गुजर चुका था जिस वजह से खून रुका मगर मुंजमद था। आसफा फूट फूट कर रो रही थी और सकीना अपने आंसू पूंछते उन्हें संभाल रही थी। यूसुफ घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। इनमें अपनी बेटी के मुर्दा वजूद को उठाने की हिम्मत नहीं थी। माजिद परेशानी के आलम में अरीज की हालत देख रहे थे। फरजाम ने हिम्मत की और अरीज तक पहुंचा। उसने अरीज की गर्दन को सीधा करना चाहा मगर कोशिश के दौरान उसकी गर्दन एक जानिब लुढ़क गई। गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी। अरीज के घने बाल उसके पेट और घुटनों पर गिरे हुए थे। कमज़ोर दिल शख्स ये मंजर नहीं देख सकते थे। फरजाम ने बहती आंखों से उसके टूटे वजूद को अपने बाहों में भरा और वाशरूम से बाहर निकाला। जरा सी गफलत और आसफा और यूसुफ अपनी बेटी खो चुके थे। अरीज की हालत की ख़राबी के बायस रात तक इसकी तदफीन कर दी गई थी। इसकी तदफीन में इब्राहिम ने भी शिरकत की थी। वो भी बहुत दुखी थे मगर क्या करते। अब पानी सर से गुजर चुका था। अरीज जा चुकी थी। आसफा और यूसुफ की हालत काफ़ी ख़राब थी। वह अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहते थे। फरजाम भी बेहद दुखी था। उसे अरीज से मोहब्बत थी, बेलौस मोहब्बत, बेगर्ज मोहब्बत। घर में सफ़र मातम बिछी हुई थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे। यूसुफ ने फैसला कर लिया था कि वह अभी इसी वक्त घर छोड़ देंगे। वो एक लम्हे के लिए भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं थे। फरजाम ने भी अपनी लंदन की टिकट बुक करवा ली थी। वो भी जल्दी से वापस जाने का इरादा रखता था। जिस लड़की से निकाह के लिए वो यहाँ रुका हुआ था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। किस कदर तकलीफ मौत बर्दाश्त की थी उसने, ये सोचकर ही फरजाम तड़प उठा था। सब जा चुके थे। सिर्फ माजिद और सकीना वहाँ मौजूद थे। आसफा मुसलसल रो रही थी। यूसुफ माजिद के गले मिले। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, यूसुफ ने दुख भरे लहजे में कहा तो माजिद ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया। यूसुफ ने आसफा को सहारा देकर खड़ा किया। आसफा आंसू पोंछती हुई खामोशी से खड़ी हो गई। सकीना इनसे गले मिली। इन्हीं इसी लम्हे फरजाम अंदर दाखिल हुआ। इन्हें जाने के लिए तैयार देख वो भी उनके पास आ गया और यूसुफ से गले मिला। घर की अंदरूनी बत्तियां एक बार फिर बुझा दी गईं और घर एक बार फिर अंधेरे में डूब चुका था। यूसुफ ने गैराज से गाड़ी निकालकर दाखिली दरवाजे पर ताला लगाया और गाड़ी के करीब आ गए। आसफा को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़े। बैठने से पहले उन्होंने एक नज़र मुड़कर घर को देखा। आंखें भीग गई। इस घर ने इनसे इनकलौती बेटी छीन ली थी। घर में एक बार फिर सन्नाटा और अंधेरा छा गया था। यूसुफ खामोशी से गाड़ी में बैठ गया और माजिद, फरजाम और सकीना को अलविदाई कलमात कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। 1 साल बाद एक गाड़ी आकर इस सुनसान अंधेरे में डूबे घर के सामने रुकी। गाड़ी से कुछ अफराद बाहर निकले। माजिद इस वक्त रात के खाने के बाद सैर की नीयत से घर से बाहर निकल रहे थे। गाड़ी से बाहर निकलने वाले अफराद में एक मर्द, एक औरत और 2 बेटे शामिल थे। एक लड़का तकरीबन फरजाम की उम्र का था और दूसरा इनसे छोटा था। इन्हें देखकर माजिद ठटक कर रुके, फिर इनके करीब आ गए। मेरा नाम माजिद है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। माजिद ने सलाम के बाद अपना तारुफ करवाया तो सामने खड़े शख्स ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया और अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम ईसा है। माजिद मुस्कुराए फिर कहने लगे, ये घर काफ़ी अरसे से खाली है, अंधेरे में डूबा रहता है। आज यहाँ गाड़ी खड़ी देखी तो मैं समझ गया कि ज़रूर कोई आए। जी, मैंने ये घर ख़रीद लिया है। ईसा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आप लोग अभी अभी आए हैं, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, ये घर मेरा ही है। माजिद ने दाएं जाने मौजूद घर की तरफ इशारा करके कहा तो ईसा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला। माजिद भी जवाबन मुस्कुराए। फिर ईसा ने गेट का ताला खोला और अपनी फैमिली के साथ घर में दाखिल हो गए। माजिद अपने घर जाने के लिए मुड़ गए। चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
अजीब सी शैतानी, पुरसरार और गैर मामूली मुस्कुराहट। अब इनकी बारी। माजिद ने मुस्कुरा कर कहा, फिर गर्दन मोड़कर ऊपर बालकनी की तरफ देखा। एक सायानुमा वजूद वाज़ेह हो रहा था, जिसकी सुर्ख आंखें चमक कर नुमायाँ हो रही थी। वो वजूद खामोशी भरी बेबसी से खड़ा नीचे माजिद को देख रहा था। आंखों में शदीद नफरत थी। माजिद ने लबों पर पुरसरार मुस्कुराहट सजाकर उसे देखा, फिर अपने घर की जानिब बढ़ गए। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ किरदार बदलने वाले थे। बाएं जानब से छोटे से घर के टेरेस में खड़ा शख्स बेबसी की तस्वीर बना सोच रहा था।